Hi guys, welcome to Growing Business with Ritvik. Today I have a very special guest on the podcast. I think हम बचपन से अभी तक सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि हाउ टू ब्रश योर टीथ, हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर टीथ, बट उसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं जो आज हम क्लियर करेंगे. वी हैव अ वेरी रेनाउंड डेंटिस्ट फ्रॉम दिल्ली विद अस टुडे. लेट मी इंट्रोड्यूस हर टू यू गाइस. हाय तान्या, हाउ आर यू? Very good. How are you doing? I'm doing good. Thank you for having me here. I'm really glad. I think बहुत कम लोगों को पता है that we know each other from quite some while now, and I'm the most elated today in terms of doing this conversation with you. To start things first, I think I actually want to understand, coming from a comfortable background and then getting into dentistry, how does this happen? So, I knew I wanted to be a doctor when I was in the 9th grade. My family was in America, so I was in Los Angeles, and I just wanted to wear this white coat. And my father was like, "Are you sure? हमारी family में तो कोई doctor नहीं है." So I said, कोई बात नहीं, but I should be the first then. But मुझे doctor बनना है. So, he was very supportive and he said, ठीक है, if you want to, start studying towards it. मेरे स्कूल में एक opportunity आई to do an internship in a dental office. अच्छा. तो पहले हमें एक कोर्स करना था to be a dental assistant. अच्छा. तो 6 महीने I did that course. फिर मैंने internship ली and then actually job ही बन गई because they loved how I had performed. Right. So then they offered me a job in a dental office, which was a very high-end, Los Angeles था तो a very high-end cosmetic doctor who was doing these smile designing cases, and there was a pedodontist जो बच्चों के dentist होते हैं. So there was this lady who had just graduated. उनने अपना clinic शुरू किया था. So I was assisting both the doctors. Okay. And I just loved it. I think जो मुझे high मिला उस time, एक तो I was the highest paid 9th grader, 10th grader at that point. So all my friends were like, तेरे को तो बहुत मिलता है. And my family was at first a little upset कि assistant बन गए तुम. But I felt my mom and dad were proud also. They were very happy कि I had, I was capable enough to get a job and do this. And within 6 months, I was very sure. So 10 से आने से पहले only I was very sure कि मुझे तो dentist ही बनना है. And journey started then. पूरा throughout school मैंने काम किया in a dental office. उसके बाद मैं इंडिया आ गई and I went to Dr. D.Y. Patil College. So yeah, my dental journey started when I was very young, and मेरा ये passion है. कई लोग बोलते हैं work, this and that. मेरी daughter अब मुझ पे हंसती है कि मम्मा, how can you see people's teeth? Yuck! And and I have a problem with smell. Like I cannot be in a place with smells. I have odor issues. So they keep laughing at home कि इतने odor issues हैं and you are a dentist जो लोगों के मुंह देखते हैं. And that also, but somewhere कुछ नहीं पता लगता. When I'm working, I'm just in a trance. अच्छा. तो मेरे को आप एक बात बताओ, तो जर्नी जब इंडिया में आई, बहुत लोगों का, मेरे को तो लगता है ये मिथ है कि इट्स अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड एंड अ हाईली पेड प्रोफेशन इन अमेरिका, अब्रॉड. यहाँ पे इतना ज़्यादा हाईली पेड नहीं है, तो मनी कंसर्न आपके लिए कभी भी मतलब एक इशू नहीं था? Like I said, मेरे लिए पैशन है. I do it for myself, and I love seeing people smile, and I want to promote preventive dentistry in India. जो मैंने बाहर देखा है, people come for checkups every 6 months. They are very concerned about their oral hygiene, their teeth. इंडिया में क्या है, हमारे 80% केसेस आते हैं मुंह सुजाए हुए, पेन, and they come in straight for a root canal or extraction. मतलब जब तक काम बिगड़ नहीं जाता यहाँ पे नहीं आते हैं. जब तक मोस्ट ने तो एक कोर्स एंटीबायोटिक का भी खाया होता है कि चलो उससे ठीक हो जाएगा. बट सो मैं चाहती हूँ कि लोग कॉन्शियस हो जाएं, एवरी 6 months आएँ तो उनका वो डेंटिस्ट से फियर हट जाए. पीपल आर स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू अ डेंटिस्ट बिकॉज वो जब आते हैं दे हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग प्रोसीजर.
अगर रेगुलर चेकअप चलते रहे देन दे डोंट हैव टू गो इन फॉर एन एक्सट्रैक्शन और रूट कैनाल और एनीथिंग इन्वेसिव. तो आपको ऐसा लगता है कि जब रूटीन चेकअप्स होते रहते हैं एंड इवन क्लीनिंग और वाइटनिंग के अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, बट रेगुलर रूटीन चेकअप्स एक्चुअली में आगे की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट ही कर देते हैं आने से? यस. सी अगर कोई प्रॉब्लम इनिशिएट हो रही होगी डेंटिस्ट उसी वक्त पकड़ लेगा. कैविटी छोटी होगी उसी वक्त इट विल बी डन. वी डोंट हैव टू वेट फॉर द पेन टू स्टार्ट. राइट. सो इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर देन. नो लोकल एनेस्थीसिया ऑल्सो. अगर तुम टाइम पे आ जाओ एंड रेगुलर रहो यू डोंट नीड. आई थिंक विद डॉक्टर्स लाइक यू कमिंग इनटू द पिक्चर ये अवेयरनेस आ रही है. इनफैक्ट मैं भी आज इस कॉन्वर्सेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें सीख के जाऊँगा. बट टू टेल यू द ट्रूथ, आई थिंक आई गॉट माई फर्स्ट क्लीनिंग ऑफ माई टीथ व्हेन आई वॉज 32. लाइक that's really bad. Very right? bad, very bad. But then again, ना तो घर में कभी अवेयरनेस रही कि वो मिल्क टीथ टूटते हैं, उसके बाद जब नए टीथ आते हैं शुड यू, मतलब आज आई हैव अ सन हु 7 year old एंड उसका शायद 1 या 2 दांत टूटे हैं एंड आई हैव गॉटन वेरी कंसर्न बिकॉज आज की डेट में अवेयरनेस है. शुड आई टेक हिम टू अ पीडियोडोंटिस्ट एंड एक्चुअली अंडरस्टैंड कि दांत टेढ़े मेढ़े ना आएँ, किस तरीके से उनका ख्याल रखना है कि नए दांत सही जगह पे आएँ. इनफैक्ट आपको एक मेरे खुद का प्रॉब्लम पता है जो हम लोग आई थिंक मैं अभी तक तो सिर्फ सुनता था कि विजडम टूथ आते हैं, बहुत दर्द होता है और एक्सट्रैक्शन होता है. और आई थिंक 2 दिन पहले मैंने अपना एक्सरे आपको भेजा है ना, आई वाज लाइक इन शॉक कि भाई मेरे विजडम टूथ भी नहीं आए हैं. सो डिस्कवरिंग दैट एट 35, डू यू थिंक ये पहले अगर दिखाया होता तो शायद वो विजडम टूथ ठीक ही आ जाते या मे बी अलाइनर्स के साथ वो बेटर हो जाते ये प्रोसीजर्स पहले होने से? So I'll answer it in 2 parts. Yeah. पहले वाला पार्ट है बच्चों का. For kids, the first time to visit a dentist is when you see the first tooth. Or at the age of 1. So ये नहीं है कि permanent teeth की वेट करनी है. जो primary teeth हैं, जो milk teeth हम बोलते हैं, Correct. they are very important. If they are infected, then the infection can go to the teeth which is under it. The tooth bud which is going to be the permanent tooth. Then the gums can be infected. So it's just not good to neglect our primary teeth. Very important to visit a dentist since the kid is 1 every 6 months. कुछ नहीं है, basic preventive care करेंगे dentist. एक fluoride treatment आता है. Fluoride is a mineral which remineralizes the tooth structure. So basically layman term में ये हमारा जो दांत है उसको हार्डन कर देगा, उसके आउटर स्ट्रक्चर को. Okay. So it's very good. So we can do that every 6 months. जब first permanent molar निकलता है at the age of 6 or 7, there's something called a sealant which I recommend for kids. Prevention में आता है ये. Basically आप सील कर रहे हो दांत को, जो दांत की top surface है उसको सील कर दो. Because the kids are not as careful as us. Sometimes they will brush, sometimes they won't. बिस्किट्स बहुत खाते हैं तो वो चिपका रहता है दांत में. So बच्चों का अगर पहले से ही ये सब हो जाए then you save the teeth for a long term run. So that is the question where kids are concerned. मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करके पूछना चाहता हूँ. जैसे आपने बोला आई थिंक मेजॉरिटी जनता को तो ये पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई ट्रीटमेंट होता है कॉल्ड सीलेंट जो आप करा सकते हो. बट जैसे आपने बोला कि एज 1 से आपको टेक केयर करना चाहिए. अगर आप उस एज से टेक केयर कर रहे हो तो क्या आप टूथ गैप्स, टेढ़े मेढ़े दांत, ये सब चीज़ों को भी प्रिवेंट कर लेते हो? इन अ लॉट ऑफ केसेस. सारे केसेस में नहीं. जैसे आप टेढ़े मेढ़े दांत बोल रहे हैं, राइट? अगर बच्चे की जॉ ही छोटी है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं ओवर टाइम विद समथिंग सिंपल एज डेंटल प्लेट्स जो लगती हैं एक्सपैंडेबल्स. तो क्या होगा कि बच्चे का फिर ज़्यादा वो मैल अलाइनमेंट नहीं होगा. इट विल ऑल फॉल इनटू प्लेस और इट इज क्लोज टू वेयर दे आर सपोज्ड टू बी. जितने खराब होने उतने खराब नहीं होंगे. अब जो है मिल्क बॉटल कैविटीज इसको बोलते हैं. अब जो मदर्स मिल्क पिलाती हैं बच्चों को एंड बच्चों के दांत होते हैं, फिर वो हम वाइप भी नहीं करते तो वो बच्चों के दांतों पे तो मिल्क चिपका हुआ है. सो देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ कैविटीज. सो अ लॉट ऑफ केसेस, दैट्स व्हाई आई से 1 और व्हेन यू सी द फर्स्ट टूथ, बिकॉज एक बार आके डेंटिस्ट से समझ लो हाउ डू यू टेक केयर.
Yeah. जब ये आ गया then you win most of the battle. Correct. तुमने you know how to brush, you know how to take care, the kid is aware, every 6 months ही तुम जा रहे हो, तो the kid is also, you know, will never experience a very bad dental, Correct. you know, like that experience. A lot of kids are scared Hmm. because उनके साथ कितना, you know, like रूट कैनाल हो गया, कभी इंजेक्शन लगाई, the kids don't like all that. So बट one must तान्या avoid. कहीं ना कहीं ये भी तो है कि पहले ये ट्रीटमेंट्स बहुत पेनफुल होते थे, अब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है. You know, I would say I think थोड़ी knowledge बढ़ गई, so maybe शायद पहले आ जाते हैं कुछ लोग, but yes, technology has advanced, but ऐसे नहीं है कि पहले पेनलेस नहीं हो सकते थे. It's just because जब लास्ट मिनट आओ तो आज भी कुछ नहीं कर सकते. Same because the local anesthesia doesn't work as well जब inflammation होती है. अच्छा. So one has to be a little aware of that. It will work, but it won't work as well. अब वो 80% efficacy और 100% में बहुत फ़र्क है. मैं ना जब आई थिंक ये मिथ भी नहीं है, ये थोड़ी सी फनी बात है कि जब भी आप घर में भी बात करते हो, आपने ना मतलब आई थिंक द सोसाइटी और फैमिली इज बीन ब्रेड लाइक दैट कि वो ना बोलते हैं कि यार डेंटिस्ट के जाओगे ना तो वो 2 फॉल्ट तो तुम्हारे दांत में निकाल ही देगा. तो अच्छा मतलब किसी नहीं के भी है. दांत ठीक तो है नहीं, तो 2-4 ट्रीटमेंट आप जा तो रहे हो नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए, लेकिन 10-15 हज़ार का तो मतलब आपका खर्चा आ ही जाएगा. बट मैं आपकी बात से समझ के ये चल रहा हूँ कि अगर 15 साल तक बच्चों के साथ आपने 50-60,000 रूटीन चेकअप्स और बेसिक ट्रीटमेंट पे लगा लिया, तो बाद का 2-4 लाख रुपए जो लगना है वो बचा लोगे आप. You know, and much less than that. How much is a dental visit? So much less. In fact, not even 5-10% of what you would spend later. या And then suffer. Why would one, you know, call for bad health, right? Even Right. where it's oral. राइट. And बच्चों का क्या है? A lot of kids are mouth breathers. अब वो जो माउथ से ब्रीथ करते हैं, then they have more cavities. Now there are devices which we can help them control that. There are a lot of devices जो बच्चे थम सक करते हैं. अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं which you would only know when you visit a dentist. करेक्ट. एंड इससे मतलब जब आप जर्नी में आगे जाते हो एंड देन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, मैं एक्चुअली थोड़ा सा इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि डेंटल हाइजीन से लेटर एज में बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स बॉडी में भी होती हैं. Yes. So जो oral बैक्टीरिया है वो तो ब्लड के थ्रू बाकी भी ऑर्गन्स में जा सकता है. So any dental infection can actually cause a heart, kidney, liver infection as well. रियली? Yes. तो वो मतलब बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज एग्जिस्टिंग इन द, मतलब क्योंकि डेंटल हाइजीन नहीं है, तो डेंटल हाइजीन सिर्फ और सिर्फ ब्रशिंग तक सीमित नहीं है. Yes. लाइक इट इन्वॉल्व्स रेगुलर विजिट टू योर डेंटिस्ट. बिकॉज मैंने ना बहुत अच्छी बात सुनी जब मैं मैं ENT डॉक्टर के गया था. मेरे को लगा कि यार मेरे गले में कोई इन्फेक्शन है या थ्रोट में कोई इन्फेक्शन है, लेट मी विजिट अ ENT. तो ENT ने देखा, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जो लग रहा है उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. तो मैं आपको बताता हूँ कि आप एक रेलवे स्टेशन पे गए और आपने देखा एक बंदा था, वो एक बैग एक सीट के नीचे रखा, 5 मिनट उस पर बैठा और चला गया. अब आपके पास 3-4 ऑप्शन है कि आप पुलिस को बता सकते हो, आप देख सकते हो बैग में क्या है, खुद जाके देख सकते हो, या आप शोर मचा सकते हो. तो आप क्या करोगे? तो मैंने कहा कि मैं तो पुलिस को बुला लूँगा या बैग में देखने के लिए मतलब जाऊँगा कि क्या है. कहते रॉन्ग, आप शोर मचाओगे. और शोर मचाना हेयर इज इक्विवेलेंट टू गोइंग टू अ डॉक्टर जो आपको एक्चुअली बताएगा कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, जो काफ़ी अर्ली स्टेज पे कंट्रोल हो जाती है. बट क्योंकि आप इतने एक्सट्रीम फेज में जब तक वो पेन में कन्वर्ट नहीं हो जाता आप तब आते हो, तब तक काफ़ी चीज़ें ख़राब हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से देन यू हैव टू गो टू दीज ट्रीटमेंट्स. तो ये मेरे को बहुत अच्छी एनालॉजी लगी जो उन्होंने करी. तो उसके बाद आई वॉज वेरी कंफर्टेबल. एंड देन जो वो कह रहे थे मतलब ठीक ही निकला कि आपके तो विजडम टूथ ही नहीं आया है. तो आई वॉज लाइक शॉकिंग, मतलब कि एट 35 कैसे हो सकता है ये? मेरे में विजडम नहीं आया अभी. मतलब मैं तो ये था कि एंड एक नहीं दो नहीं चारों विजडम टूथ में एक्सट्रैक्शन होगा उसका. एंड वो एक मिथ बना हुआ है कि एक्सट्रैक्शन इक्विवेलेंट टू पेन. No, you know, it is a myth now. After local anesthesia, all the different techniques, it won't be painful, you know, but it has to be done. And the recovery period is
like a surgery. Now depending on कितना bone के अंदर है, कैसे angulated है, but it's more important to get it done than to wait, right? वो उधर infection करेगा, आगे gums में कर रहा है, उसके next nearby teeth को करेगा, उससे better है to just get rid of बट it. आपने बहुत अच्छी बात बोली एंड मतलब लाइक एन इंटेलिजेंट डेंटिस्ट आई कैन से कि जनरली लोग क्या करते हैं कि उस दर्द को टाइम के लिए सबसाइड करने के लिए दे गो फॉर एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, Everything. विच इज लाइक ऑल द मोर हार्मफुल क्योंकि इवेंचुअली तो आपको वो कराना ही पड़ेगा. हाँ, तुम So- कितनी देर prolong कर रहे हो basically, हाँ. and then जब आओगे तो worst condition में आओगे. करेक्ट. अच्छा, मैं जब डेंटल हाइजीन के बारे में बात करता हूँ आई थिंक उसके 3 एलिमेंट्स हैं. एक एलिमेंट है ब्रशिंग योर टीथ, एक एलिमेंट है फ्लॉसिंग एंड एक एलिमेंट है माउथ वॉश. मुझे लगता है कि ब्रशिंग के अलावा वो भी शायद वंस इन अ डे मेजॉरिटी जनता करती है, बाकी चीज़ों की अवेयरनेस तो है ही नहीं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ वॉश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. और क्योंकि आपने मार्केट में देखा होगा आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है वो अल्कोहल के साथ वाले माउथ वॉश एंड विदाउट अल्कोहल. तो इस पे थोड़ा सा आप मेरे को बताओ. So mouthwash I don't recommend all the time. In Okay. fact, जो इतने strong mouthwashes हैं, that could actually affect your taste buds. They are so minty. So एक तो पहले अगर use करना है, they should be diluted. ओके. And it should अच्छा. only be used अगर कोई gum problem है, डॉक्टर ने recommend किया है, you need this particular mouthwash. Or if you're out and you have some odor you feel and you know there's no place to brush or so then yes keep it handy, but I do not advise regular use of a mouthwash. मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आज मेरी ही एजुकेशन हो रही है बिकॉज मार्केट में जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट फैलाया जाता है, जैसे मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहता बट ग्रीन कलर की जो बॉटल आती है तो हाँ मतलब क्यों लेना ना. तो आप ब्रांड भी समझ गए होगे. तो अब वो तो मेरे को लगता है कि मैं कब से वो बड़ी वाली बोतल में एक ढक्कन डाल के ब्रश के बाद करता ही हूँ. फिर मेरे को नॉलेज नहीं है ना, फिर मेरे को लगा कि शायद जो ब्रशिंग के बाद वाटर आपको यूज़ करना चाहिए ना उसको माउथ वॉश से रिप्लेस कर दो. तो मतलब इतना खराबी है ये सीन. You know very, and ये भी है कि हमारे माउथ में गुड बैक्टीरिया भी तो है, तो why are we getting rid of all of it? राइट. So- मेरे को एक्चुअली किसी डेंटिस्ट ने रेकमेंड करा था अ माउथ वॉश जो मतलब उसका अलावा कोई मतलब जनरली वही रेकमेंड करते हैं फ्रेश क्लोर फॉर लाइक बैड ब्रेथ या Yeah. बैक्टीरिया या आफ्टर क्लीनिंग आपको कुछ टाइम यूज़ करना चाहिए. उसके हक में हो या फिर भी आपको लगता है कि नहीं मतलब Like a clove. करेक्ट. हाँ, why not for this thing if you like the taste, but it's quite अच्छा, पुराने strong. ज़माने में बहुत सारे लोग दंत मंजन करके हाँ, वो चीज़ जो यूज़ करते थे वो आज क्यों नहीं एग्जिस्ट करती. वो लोग कहते थे कि हमारे दांत तो बहुत मजबूत हैं. वो कोई साइंटिफिक था उसके पीछे? We have not studied anything. हमारी मेडिसिन में इसके बारे में कुछ है ही नहीं. है ही नहीं. So no, I don't believe in it at अच्छा. all. तो अब अगर मैं माउथ वॉश अभी से इतने कुछ हार्ड आई कैन इमेजिन ऑल्सो, तुम बाइट करते रहो तो ओवर हाँ. टाइम तो दांत भी तो हिलना शुरू कर देंगे. सो हाँ, आई मतलब- डोंट रेकमेंड. नहीं. पुराने ज़माने में तो ऐसे ही दांत निकाल देते थे सोचे बिना, चलो हाँ. पेन हो रही है निकाल दो. हाँ नहीं, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं तो जो आपका सोशल मीडिया है उसने कुछ फैक्टर्स में तो देखो हेल्प भी करा है. हाँ. और वो मतलब फनी फैक्टर ये है कि आई स्टिल रिमेंबर व्हेन माई मिल्क टीथ वर गोइंग. मतलब वो हिलने जब लगता था उसके बाद उसका एक्सट्रैक्शन मतलब ऐसा होता था इतना पेनफुल कि कौन खींचेगा मेरा दांत जब वो हिलने लग गया. तो उस टाइम पे वी यूज टू मतलब हमने जो यूज़ किया वी यूज टू ईट अ हार्ड टॉफ़ी कॉल्ड इक्लेयर्स कि वो उसके साथ हाँ निकल चिपक के ही निकल जाएगा. बट रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा वेरिन उसने क्या किया, उसने डेंटल फ्लॉस ऑर्डर किया. डेंटल फ्लॉस को उसने दांत पे बांध के नर्व की गन के साथ अटैच करके शूट कर दिया. एंड इट वॉज पेनफुल एंड यू वोंट बिलीव तान्या, आई ट्राइड with my son when he was losing Please don't. and it Are was you pain serious? and Don't it tell was me this. pain free. Oh my God, मतलब please. उसमें मतलब मेरे को ये था कि डेंटल फ्लॉस बहुत हार्ड मतलब होता है तो वो सही से बंद नहीं रहा था. जिस बार वो सही से बंधा तो मेरे को ये समझ आ गया नीचे वाले दांत के लिए ऊपर शूट करना है और ऊपर वाले दांत के लिए नीचे. एंड इट टुक 1 सेकेंड. तो मेरे को ये मतलब माई सन वॉज लाइक कि निकल गया.
मतलब इट एक्चुअली वर्क मेरे को लगता है कि फ्रॉम अ डेंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू Not at all. Not at all. Please don't do all this. So everything on social media is not correct. चाहे dental हो चाहे medical हो. हाँ A lot of people like you and me, if I would be uneducated or not a dentist, मैं अभी भी ये एक वीडियो बना रही होती और मैं कहीं भी डाल सकती थी, right? So one shouldn't believe everything on social media. And this तो बिल्कुल नहीं. Milk teeth or a primary tooth should fall in its own course. वो खुद ही अच्छा. हिलते हिलते गिर जाएगा. क्यों निकालना है? Why extract? अच्छा मतलब पेरेंट्स डोंट नीड टू वरी No. जब दांत हिलना शुरू होता है It's great. खुद अपने नेचुरल कॉस्ट में बच्चा खाना खाएगा, वो दांत निकल आएगा. अच्छा तो कोई भी ऊट पटांग अगर 10 टेक्निक दिन लग जाए, 3 हफ्ते लग जाए, it's fine. We don't have to बट extract. कहीं ना कहीं बच्चा भी तो उस समय इरिटेट हो रहा होता है ना बिकॉज एक से साथ 2-3 दांत हिलने शुरू हो जाते हैं कोई बात नहीं. I मतलब- mean it's a natural course of growing. अब इतना तो बच्चे में टॉलरेंस हमें डालना पड़ेगा. ज्यादा सोशल मीडिया ने एजुकेशन No guns, nothing. You could have actually harmed his mucosa, the tooth under it, the tooth next to it. ये गन से प्रेशर पड़ता तो उसके साथ वाला परमानेंट टूथ हिल जाता, तो आप क्या करते? मतलब आई थिंक ये भी एजुकेशन है जो मिली. अच्छा कमिंग फ्रॉम माउथ वॉश टू फ्लॉसिंग, इसके बारे में तो आई थिंक मेजॉरिटी जनता को पता ही नहीं है. फ्लॉसिंग फ्लॉसिंग आई थिंक 2 तरह से आ रही है मार्केट में. वन इज लाइक दैट थ्रेड दैट कम्स एंड नाउ दिस अ वाटर फ्लॉस दैट हैज स्टार्टेड कमिंग. तो आप थोड़ा उसके So बारे I'll में. tell you, I have a handle floss here. So the best are the thread flosses. But अच्छा थ्रेड फ्लॉसेस आर द बेस्ट. हाँ, but कई बार people are little lazy, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं. ऐसे बॉक्सेस आते हैं, इसमें ऐसी फ्लॉस आती है. It's a Okay. handle floss, so one just needs to put it between the teeth. So flosses are used to clean the areas between two teeth. अच्छा वो उसके अंदर चले जाते हैं इवन इफ देयर इज नो Very- गैप. Yes, in fact, you're not supposed to have gaps, but they will go, and you're not supposed to do it very hard. You have to be very gentle. आप जोर से मारेंगे तो रोज उसी गम पे उधर ही मारते रहेंगे. You're injuring the gum. If we do it very slowly, it will get inside, and we clean the surfaces जहाँ पे toothbrush नहीं जा सकता. This is very very important. Twice But a is it day twice a after day? brushing. अच्छा. Yes. एंड ये जो नहीं करते हैं उससे क्या प्रॉब्लम आती है जो फ्लॉसिंग नहीं करते हैं? उनके दांतों के बीच में there will be food stuck which will become hard, it will become calculus, plaque. अब वो उधर ही बैक्टीरिया जमा होता रहेगा. So then they can get a cavity to gum disease, everything. Like Oh my in God. general, yeah. तो जब आपने बोला कि ये रेकमेंडेड है सो इतना प्रमोशन रिगार्डिंग दैट वाटर फ्लॉस मशीन क्यों हो रहा है लाइक? Because that is easier for people. Okay. Secondly, जब gap ज़्यादा होता है, then that works very well. अच्छा. So I actually advise it to a lot of patients. It's easy and they have major gaps, some people, and it's easy, at least they're cleaning it well. And it works very well. अच्छा बट जिनके दांत ठीक है उनको ये वाला फ्लॉस यूज करना Yes. चाहिए. And then if there are gaps, they should use a water floss, but this works better. बट आई थिंक अगर 100 पेशेंट आपके पास आ रहे हैं तो आई थिंक 100 के 100 ही फ्लॉसिंग पे नहीं होते हैं. No, Unless- it's a very small percentage. See, Hello? I'm getting patients from all over, but because I primarily into smile designing aligners, there's a strata of patients that I get here. So I would say now, because of my education also to them, even when they come for a cleaning, I educate and send them. मैं उनको proper brushing भी सिखा के भेजती हूँ, proper flossing भी, because I feel they're coming to me not कि clean कर दिया. मैं जितना educate करूँगी उतना I can promote my preventive dentistry. अच्छा. So now I would say 50% are flossing and twice a day. अच्छा दैट्स वेरी गुड. Yes. तो आपने जब क्लीनिंग की बात करी आई थिंक क्लीनिंग एंड वाइटनिंग से भी बहुत सारे लोग डरते हैं कि क्लीनिंग में टूथ एनामल थोड़ा सा इरोड हो जाता है या वाइटनिंग में Yes. इरोड हो जाता है. आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट दिस. So ये myth है. ठीक अब है. क्लीनिंग से तो बिल्कुल इरोड हो ही नहीं सकता. सब a lot of people feel कि हमारे दांत का स्ट्रक्चर ये सफाई करने से निकल जाएगा, जी. हमारे दांतों में गैप आ जाएंगे. अच्छा. फर्स्टली अल्ट्रासोनिक डिवाइस है जिससे क्लीनिंग की जाती है, डेंटल ठीक है. क्लीनिंग. यू कैन नॉट टेक आउट टूथ स्ट्रक्चर विद दैट. So that
इज अ मिथ. सेकेंडली, अगर गैप आ गए दैट इज बिकॉज तुम्हारे दांतों में इतना कैलकुलस फंसा हुआ था, और जब वो Oh. निकाला है तो देयर विल बी अ लिटिल, बट द गम्स, द हेल्दी गम्स विल ग्रो बैक. हाँ, मतलब इंडिया में थोड़ा कल्चर है कि अनएजुकेटेड जो लोग हैं उनके साथ जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो वाली बात ज़्यादा फैलती है. बट एक्चुअल बात तो ये है कि आप अब जैसे मैंने फर्स्ट क्लीनिंग कराई मैंने वो 32-33, तो ऑफ कोर्स 32 साल से जब क्लीनिंग नहीं yeah. हुई है तो आई थिंक उन्होंने भी मेरे को एजुकेट किया था. आई थिंक इट वाज लाइक 2.5-3 years बैक कि यू विल फील कि आपके दांतों में ना बहुत सारी चीज़ें खाली हो गई हैं या पीछे की लेयर पूरी चली गई है, बट वो इसलिए आप फील कर रहे हो बिकॉज वो सब जो कैलकुलस या जो भी था वो रिमूव हो गया है. Yes. हाँ, बट That has the bacteria in it. तो क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए टू गेट अ क्लीनिंग? Every 6 months. यू शुड. It's very important to visit a dentist every 6 months, get your cleaning done and regular checkup. तो आपको लगता है कि जब क्लीनिंग होती है वो फ्लॉसिंग का भी काम कर देती है या फ्लॉसिंग इज सेपरेट? See, घर पे तो मेंटेनेंस इज वेरी नेसेसरी. अगर Okay. आप 6 महीने में आ गए बट घर पे मेंटेन नहीं कर रहे विद ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग, देन देयर इज नो पॉइंट, राइट? अगेन यू आर सिटिंग विद द सेम. बट आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे दे हैव देयर ओन सेट पैटर्न्स और वो अपने पॉइंट्स लेके आते हैं कि हमने तो जी ऐसे करा था और वैसे करा था. तो कोई फनी स्टोरी आपके पास लाइक? So, everybody has a different story. And, somebody will come and say, I've been, very careful with my teeth. मैं इतनी देर से वो Sensodyne use कर रही हूँ. And I'll be like, do you know, you can't use it over 4-5 weeks. You're not supposed to. Wow. And they've been using it all their life. So a lot of stories like this, funny stories saying that, I basically just had long and मैं बिल्कुल ठीक हो गई उससे. मैंने लौंग रखी अपने साइड पे बिल्कुल सही and बोला सारी आपने. पेन चली गई. हाँ So हमने कितनी देर के लिए? हाँ. And they're like, बस उस दिन के लिए ठीक था. But again, तुम अरे दांत का वो दर्द कर हो तो रहे लौंग रख लो मुंह में. हाँ, but it's just curing you for that 1 or 2 hours ना. That's it. Yeah, but what is the solution? So a lot of ये हमने funny. सेंसोडाइन वाली बात जो बताई, मतलब डिफरेंट, ये तो पता ही नहीं है लोगों को. मतलब हाँ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं. And you're not supposed to use it after sometimes. These are ये medicated. खुद मार्केटिंग करते हुए भी नहीं बताते ये चीज की लाइक कहीं तो लिखा होना चाहिए. ये लिखा होता है. लिखा हुआ है. We just don't read it, but it's written. अच्छा अच्छा. जैसे ईयरबड में हमें हाँ. जो किसी को आई थिंक 95% और मोर डोंट नो कि हर ईयरबड के पैकेट में लिखा होता है कि do not it can cause harm in the ear or something like that. Basically it's not good to use it to clean your ears yourself. अच्छा. And most of us didn't know this, right? रूटीन में आदत ही पड़ सब गई में लोगों लिखा को. हुआ है वार्निंग. अच्छा, तो टूथपेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, टूथपेस्ट पे डिफरेंट साइंस आते हैं. देयर इज अ ब्लैक साइन, देयर इज अ ग्रीन साइन एंड आई थिंक देयर इज अ रेड साइन. ये डिफरेंट साइंस की क्या लाइक आपने अगर देखा होगा, डू वी हैव अ टूथपेस्ट हियर? Green, red हो गया, veg, non-veg, Okay. but I don't think they have it on toothpaste. I think black these is days with charcoal, with chemicals. With charcoal. Okay. So charcoal is a new product that has been introduced, but honestly, I don't promote it. I do not think charcoal is doing anything great, and all these things are just supposed to be used for a short time. ओके तो हम अगर ब्रशिंग की बात करें तो लाइक इज देयर वो, हम तो बचपन से कोलगेट और इन सब की एड्स में सुनते आ रहे रेकमेंडेड बाय डेंटिस्ट. तो एक्चुअली आई एम सिटिंग विद अ डेंटिस्ट टुडे. व्हाट इज एक्चुअली रेकमेंडेड एंड डज इट हैव एज इन टर्म्स ऑफ बच्चों को क्या यूज करना चाहिए, बड़ों को क्या यूज करना चाहिए, क्या ओल्ड एज में फर्क होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टूथपेस्ट? So As you बच्चों age. and बड़ों में yes, the kids toothpaste it comes with more fluoride. Okay. Fluoride is the one that's used for remineralization, Which making is the good. tooth structure strong, which is very very good. So all the kids toothpaste must have it, Okay. unless you are living in an area which has a lot of fluoride in the water. जैसे यूपी साइड हो गया, आई थिंक डाउन साउथ काफ़ी केसेस आते हैं मेरे पास जिनके यहाँ पे पानी में ही बहुत ज़्यादा फ्लूराइड है. अच्छा. which actually has made a lot of their teeth stains in their teeth, white, Okay. brownish. Okay. So these are permanent stains that don't go. Okay. So we need to just be aware of हम कहाँ रह रहे हैं, यहाँ का पानी का फ्लूराइड लेवल क्या है. And where adults and older people are concerned,
all these brands work very well. Colgate, Pepsodent, Close Up, all are great brands, very good companies. But we must change our toothpaste every time the tube is over. We Acha. change the brand. Okay. So it just works better because the bacteria gets used to the same, right? So you keep Okay, changing same formulation. it, yes, and that works. So just something very simple and I think that's a easy very works. good advice. Even people say that when you're down with some infection and when you Change are your done, toothbrush. Correct. Very important. Now, boy, bacteria infection. for kids and adults both. Everybody. The minute you have, you are getting better with your infection, just throw the toothbrush because उसी में तो सारे germs हम हैं. जनरली हमारा वाला तो वो होता है कि जब तक वो चुभना ना शुरू करें आप बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. You must change your toothbrush every month. It अच्छा has to be thrown away every month. every month वैसे Yes. भी and if you're down with an infection उसी then वक्त just throw it after once You you're are getting a little better. better, Just throw change and your then you toothbrush. change. Yes. मतलब ये इस वाले एरिया में भी लाइक देयर इज सो मच टू लर्न इन टर्म्स ऑफ मतलब जो इस डायरेक्शन में सोचते ही नहीं है लाइक जनरली लोगों का यही फिलॉसफी है कि जब तक वो ब्रिसल्स साइड होने ना लग जाएं दे डोंट चेंज You know, they don't change and it's so important because अब वो काम ही नहीं कर रहा toothbrush. It's hurting your gums instead of helping anything. ओके And एक और चीज़ है, a lot of people they use a hard bristle toothbrush और अपने दांतों को घिसते हैं. They'll come. The stories are like हम तो बहुत अच्छी तरह से दांत ब्रश करते हैं डॉक्टर, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? एंड दे लाइक 4 मिनट भी करते हैं एंड कैसे करते हैं ऐसे जोर जोर से, दे बी लाइक स्क्रबिंग दैट टीथ एंड आई एम लाइक आप तो घिस रहे हो दांत, आपने तो अपना दांत का स्ट्रक्चर भी निकाल दिया टूथब्रश की मतलब करते करते. सो दे डोंट हैव द राइट टेक्निक and they are using very hard toothbrushes. So what kind of toothbrush is recommended? A soft bristle toothbrush is recommended for most people. अच्छा Soft bristle and change it every month. बट जैसे आई थिंक मैंने कुछ टूथब्रश देखे हैं ओरल बी के तो सॉफ्ट ब्रिसल होते हैं बट साइड में कुछ रबर के वो लगे होते हैं. व्हाट आर लाइक डू दे हेल्प? So they are mainly to clean the top surface of the teeth. So they help. Why not? हाँ मतलब वो चल सकते हैं. चल सकते हैं. But ठीक मैं है. तो फिर भी I believe in a basic, simple, nice, soft bristle toothbrush. अगर zigzag होए तो great. ठीक है. अच्छा मैं अब इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ. मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि इस चीज़ के यूज़र बहुत हैं लेकिन 95% लोगों को पता ही नहीं है कि उसको यूज़ कैसे करना है. तो उसके 2 पॉइंट हैं. पहले मैं बात करना चाहता हूँ रेगुलर टूथब्रश वर्सेस इलेक्ट्रिक टूथब्रश और दोनों का यूजेज कैसे करना चाहिए. So क्योंकि मेरा वर्जन तो बहुत फनी है इन आप टर्म्स बताओ. लाइक इलेक्ट्रिक टूथब्रश मेरे को तो लाइक ये लगा कि महंगा है तो आई थिंक कुछ बेटर परफॉर्म कर रहा होगा बट कुछ टाइम बाद मेरे को ये भी डाउट होने लगा कि ये इतना वाइब्रेट करता है तो कहीं मेरे दांत कमजोरी तो नहीं हो गिरी तो नहीं जाएगी तो मैंने बंद ही कर दिया उसको यूज करना. तो सच क्या है? So basically electronic toothbrushes work very well. अच्छा बट उनके साथ जो यूज करना जानते हो या अच्छी तरह से करते हो, वही a lot of them don't go to the back area. सबका साइज अलग है, फेस का, अंदर से माउथ का. तो a lot of these toothbrushes ना वो लास्ट couple of teeth में नहीं जाते. In a lot of patients we've been seeing. So I recommend them to keep a smaller toothbrush, a basic one for that. And these work well if this thing and vibration से दांत नहीं हिलेंगे. It vibrates more and it takes out more food particles that are stuck. बट जैसे what is the correct way of using an electric toothbrush? Do you take the toothbrush and then use it like a regular brush? आपने No. ऐसे किया ना? हाँ This is not the right movement. exactly that's why my story is funnier. I'll tell you. So basically that's what मैं पहले बोल रही थी. लोग आते हैं ना and they'll do this. They'll be like घिसुइंग their teeth like this. So now ऊपर का structure तो गया आपका, उसके साथ gums भी. So the right way with a normal toothbrush is hold it at a 45-degree angle towards the gums and circulate it. Okay. So you have to count till about 10 for each 2 teeth and like this you'll have to complete 2 minutes. So 2 minutes is the brushing time. And there are 3 surfaces in our teeth. So we need to clean all 3. One is the one that you can see. Yeah. One is the inner one. So that has to be done in the same way with rotation. And one is where you bite from. So that has to be cleansed like this.
Okay. And behind the teeth is very important. For the front teeth we clean like this, we can't rotate here, and for the lowers we have to clean it out like this. आपने तो बहुत काम बता दिया मतलब सुबह उठ के. But very important, imagine कि कभी कोई प्रॉब्लम ना आए माउथ में, टीथ प्रॉब्लम ना हो. So it's very important to do it like this. तो ये तो हो गया रेगुलर टूथब्रश के साथ. इलेक्ट्रिक में भी वही हिसाब है, you have the same toothbrush, hold it a little angle, वो खुद हिलाता रहेगा. ओके. 10 तक गिनो, फिर वो आगे आ जाएगा, ले आओ. अच्छा, तो हमें करने की जरूरत नहीं है. हाँ, हमें वो डू वी rotate पुश इट नहीं करने अगेंस्ट की- द टीथ? Yes, against the teeth and gum at a 45 degree angle up, and lower के लिए 45 degree angle. तो आपको lower. लगता है कि इलेक्ट्रिक And वो खुद टूथब्रश हिलता रहेगा. बेटर काम करते हैं वर्सेस? I can't say that. It totally depends on how you are using it. I have had a lot of patients who are using electric and they feel that their oral hygiene has gone for a toss. After Achha. 6 months, then I have told them to go back to normal. And in some kids who are not brushing properly, after teaching also a few times, I put them on electric. So हाँ, आई it's- सीन लाइक किड्स भी आजकल इलेक्ट्रिक एक टूथब्रश तो वो टाइमर आ गया 2 मिनट का, हाँ. so they know they can't stop till the timer doesn't. And then they don't have to rotate. They don't. It's vibrating itself. तो ऐसे कोई टूथपेस्ट भी आती हैं जो स्पेसिफिक पर्पस, जैसे आपने बोला सेंसोडाइन है, 4 to 5 वीक्स यूज करना चाहिए, बट उसके अलावा भी मतलब ऐसी कोई टूथपेस्ट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है जो लोगों को नहीं पता? So एक हो गई Sensodyne. So that I've told you. Charcoal toothpaste also don't use it for a long time. वही 4 weeks अगर किसी ने advice की है तो. Apart from that, no. Just keep Brushing twice a changing. day? Yeah, brushing twice a day. Change your toothpaste every month, the brand, and that's it. तो अब आई थिंक ये सारे टॉपिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हैं, विच इज़ बैड ब्रेथ, विच लाइक यू आर वेरी अगेंस्ट अबाउट, लाइक बट यू आर इन अ प्रोफेशन वेयर यू हैव टू फेस ऑल दिस. बट बैड ब्रेथ के मेन इशू इज रॉन्ग ब्रशिंग और समथिंग एल्स ऑल्सो कैन बी द रीजन? You know, in Dehydration. our country, yes, in our country, more than 70% of people suffer from gingivitis, which is gum infection. ये study Okay. है. अच्छा. तो again, जब infection होगी मुंह में, any kind, tooth से related this thing, there will be a smell because the bacteria produces that. ओके. The excess in the bacteria. ओके. So पहली बात सिर्फ ब्रश से नहीं, पर अगर overall hygiene नहीं maintain होगी तो smell आएगी. Secondly, bad breath is consisting with, like you said, dehydration. One should have a lot of water. When you have a lot of water, then your mouth is not dry. When your Okay. mouth is dry, it will definitely smell. ओके. Then, apart from this, it could also be caused by systemic diseases. Okay. Some liver problems can also cause bad breath. So, a lot Okay. of times when somebody's come to me, I've also sent them to a general doctor and gotten them checked. So, ओके. a lot of times it's because of that. So, again, आपने गम डिजीज की बात करी, तो वो गम डिजीज एक्चुअली में मतलब बिकॉज ऑफ बैड डेंटल oral हाइजीन, hygiene है, basically dental एंड hygiene. फिक्स कैसे होता है? फिक्स होगा अगेन रेगुलर डेंटल क्लीनिंग जो डेंटल ऑफिस में होती हैं. अच्छा, नॉट उनसे- लाइक. and then to take care, there are a lot of medicines that can be given to apply there. So general, it's like depends on case to case, but it's a 6 to 8 month procedure. It takes time. मैंने एक चीज़ सुनी थी जब मैं अपनी क्लिनिक के लिए गया था, तो उन्होंने बताया कि आपके ना गम थोड़े से स्वेल्ड अप हाँ हैं. जी, वो क्या प्रॉब्लम है? ये वही है gingivitis, swelling Okay. and gums bleeding. So a lot of people while brushing they must be spitting out a little bit of blood or on their toothbrush. ओके. So this is because इनकी gums inflamed है, इनमें बैक्टीरिया है, and we need to do a nice thorough cleaning. अच्छा, तो क्लीनिंग के बाद जनरली जो ये See, डिजीज है बेटर हो जाता In है? basic cases, yes, but extreme cases में there are a lot of things one can do. आजकल dental lasers आ गए हैं, which is a pain-free method to solve this problem. ओके. And there are surgeries जो basic periodontal gum surgeries होती हैं, उससे to remove all the infected tissue and bacteria from inside. So it depends on how extreme your case is. तो हम जैसे बात कर रहे थे क्लीनिंग के बारे में, तो क्लीनिंग के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है जो है वाइटनिंग. आई थिंक मैं अपने हनीमून पे था, तो मैंने देखा वहाँ पे मॉल्स के अंदर कुछ बूथ बने हुए थे
एंड यू गो इन देयर और वो कुछ पर्पल लाइट और ब्लू लाइट से कुछ वाइटनिंग करते, तो ये इसकी जो वाइटनिंग के अराउंड टॉपिक्स हैं आप थोड़ा सा इसे कवर करो इन टर्म्स ऑफ करानी भी चाहिए या नहीं करानी चाहिए. Yes, why not? So, teeth whitening is not harmful if it's done in the right way with the right products. Okay. Firstly. ओके. तो ये बहुत सारी मिथ्स हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, परमानेंटली दांत सेंसिटिव हो जाएंगे. जी. So, if you go to the right professional who knows about teeth and uses the right products and technique, this cannot happen. बट इज इट ओनली कॉस्मेटिक? Yes, teeth मतलब- whitening is cosmetic. हाँ, तो मतलब And, ये तो आपने मतलब मार्केट के लिए ये साफ कर दिया है कि ये डेंटल हाइजीन से रिलेटेड नहीं है, बट लाइक टू लुक गुड, टू फील गुड, इफ यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल देन यू हैव मोर कॉन्फिडेंस. तो Yes. उसके लिए आई थिंक ये बेटर है. You know, there's so many studies that if you have a beautiful smile, you do much better in relationships, you do much better at work, you do much better in life, and you're a happier person. ओके. Just imagine one smile increasing your confidence leads to so many things, and there have been multiple studies on it. अच्छा. Yeah. तो जब हम स्माइल की बात कर रहे हैं, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है स्माइल डिज़ाइन. ये क्या है? इज इट ओनली फॉर ब्राइड्स? No, not at all. This is for everybody. I feel at any age, why not? Why can't we be the best version of ourselves? You know, and a lot of smile designing is not that invasive also. ओके. And it can be customized according to, in fact, it is customized according to each patient. Okay. Because हर में अलग है. You know, there's such a long study on smile design. It's actually like designing, literally. You know, you have the face in front of you. I kind of, you know, draw the teeth, see how long, short, what will look nice on everybody. It's बट इसमें होता क्या है? लाइक दांतों के साथ क्या होता है? मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट इम्प्रूविंग द स्माइल, like does it have to do with the exterior part of it also, but or just the interior part fixed, तो अपने आप स्माइल फिक्स हो जाती है? So basically, I'll tell you, for yellow teeth, whitening, right? For teeth which are crooked, first aligning. A lot of people have stains which are intrinsic, मतलब वो जा ही नहीं सकते. जैसे मैंने अच्छा. आपको एक example दिया था fluoride का. हाँ जी. So a lot of people have that. Some people have genetically different shaped teeth. Okay. Some people have, you know, everybody has a different problem, right? And there are different solutions. One is aligning the teeth. If at a later age with aligners, and actually even for young adults, I think aligners work beautifully to align the teeth. Okay. So one is that. The other way is if you've heard of dental veneers. Yes. So dental veneers are very thin. They're like wafer thin porcelain structures. So जैसे crowns नहीं होते हमारे. हाँ जी. So the crown is all three sides. अभी जो veneers हैं ये अपने जैसे आप gel nails कराने जा रहे हैं या किसी के देखे होंगे. जी जी. So as thin as that, so you're actually just applying it on the front surface of the teeth, Okay. which are seen when you smile. Okay. So सारे Bollywood, Hollywood, I think most people on screen have done Veneer. veneers. Yes. Okay. Or a lot of work on their smile designing. So ये veneers कुछ lab में भी बनते हैं. Okay. कुछ मैं भी in person I make composite veneers in the dental office only on the Okay. patient while they're there. Okay. So there are a lot of things and techniques. अब gummy smile हो गई. So now when people smile, when you see a lot of that their gum, it doesn't look really nice, right? तो वो भी So, इम्प्रूव हो जाता है? yes. And today you don't have to go through those big surgeries. It's done by dental laser. तो आप गम्स काट देते हो उसमें Yes. मतलब? And it looks beautiful and there's barely any pain, or I would say no pain, because it's done through dental lasers. And कई लोगों का you must be seeing pigments on their gum, brown colored gums, and so we could do depigmentation of the gums also. आपकी बात सुन के तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाइक
इतना सब कुछ डेंटल हेल्थ के बारे में, दांतों के बारे में है जो लोगों को लाइक एज लेमन पता ही नहीं होता कि कितने अच्छी तरीके से वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम स्माइल डिज़ाइन की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं विनियर्स हेल्प करते हैं टू अचीव दैट परफेक्ट स्माइल। बट आपने इसमें बात करी टू अलाइन द Yes. टीथ, तो अलाइन द टीथ मतलब गैप्स को खत्म करना या उनको सही। गैप्स को ख़त्म करना, जो आगे पीछे के दांत हैं उनको बिल्कुल जैसे होने चाहिए इन द राइट आर्च लेके आना। बट उसके लिए तो ब्रेसेस नहीं थे। सो यस, ब्रेसेस भी हैं, अच्छा, but there's a new technology which is AI generated. So these are called aligners. ओके। Now dental aligners are they are very comfortable. They are clear and they are made through AI, which is artificial intelligence. So they fit perfectly on the teeth and they're unnoticeable. You can take them out. ब्रेसेस जो हैं हमारी कई बार हर्ट करती हैं, फिर वो सिल्वर दिखते रहता है, इसमें वो सब नहीं है। मैम इनफैक्ट सामने And वाले they- ने भी अगर ब्रेसेस पहने हो तो किस करते हुए अड़ भी जाते हैं। Well, those problems you must have faced earlier. नहीं, मैंने कभी ब्रेसेस नहीं लगाए गाइस, कंट्रोवर्शियल। But aligners basically same काम करते हैं अच्छा। as braces, दांतों को अलाइनमेंट देने के लिए। बट लाइक तो जब एक कस्टमर क्या जो पेशेंट है, एक तो उसको कैसे रियलाइजेशन होनी चाहिए, मतलब बिकॉज उसके दांतों में गैप्स हैं या वो अलाइन नहीं है। मेरा क्वेश्चन इसमें पहला ये है कि अगर मैं वो हूँ जो कि मेरे दांत अलाइन नहीं है तो मुझे इससे क्या प्रॉब्लम है, और मुझे ये पता कैसे चलेगा जब तक वो प्रॉब्लम मेरे साथ होती ही नहीं है। सो एक तो आपको देखते ही पता लग जाएगा। आपको ना, नहीं, मुझे तो डेफिनेटली। करेक्ट, बट जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने घर में घूम रहा हूँ, अब मेरी माँ के लिए तो मैं सबसे सुंदर लड़का हूँ, है ना, और जनरली कोई इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करता, अनलाइक जैसे जो डेंटिस्ट है उसको तो आई थिंक आपने मेरा और ये जो टीम आई है साथ में सबके दांत स्कैन हो जाते हैं कि भाई इसके दांत में ये Yes. प्रॉब्लम है, इसके दांत में ये प्रॉब्लम है। बट जब आप नॉर्मल फ्रेंड्स के बीच में हो तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करता अनलेस बहुत ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो कि यार तेरे दांत बहुत बाहर है ना। तो तब इंसान को जब तक प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं हो रही तो क्या प्रॉब्लम आती है अगर टीथ लाइन ना हो। सो अगर टीथ अलाइन ना हो, एक तो ब्रशिंग नहीं रहती है प्रॉपर, Okay. ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते। अच्छा, लोअर टीथ में जब क्राउडिंग रहती है, आगे पीछे रहते हैं, यू कैन नॉट ब्रश देम वेरी वेल, और इवन फ्लॉस से सब Okay. बैक्टीरिया नहीं निकलता। ओके, सो ये सबसे कॉमन है कि ये जो लोअर टीथ आगे के हैं, दे बेसिकली गेट अ लॉट ऑफ plaque, calculus collected in them, a lot of bacteria, so उसमें इन्फेक्शन रहती है, तभी पेरियोडोंटाइटिस रहता है। अच्छा, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लीडिंग गम्स हो रही हैं, इन्फ्लेम्ड गम्स हो रही हैं, बिकॉज दांत सीधे नहीं हैं। बट वो बोलते हैं कि अगर आपके दांत अलाइन नहीं है, गैप्स नहीं है, या इस तरह की क्राउडिंग, स्पेसिंग, जो भी ये वर्ड्स होते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इट कैन एक्चुअली लीड टू अ हार्ट अटैक इन द लेटर एज। वही ना, बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया कलेक्शन, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, बिकॉज द बैक्टीरिया फ्रॉम द माउथ कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द बॉडी, राइट? जस्ट बिकॉज योर टीथ आर नॉट अलाइंड। इन सम केसेस यस, जहाँ पे बैक्टीरिया इतना अक्यूमुलेट हो गया है बिकॉज हमारे दांत अलाइन नहीं है, तुम नहीं साफ कर पा रहे, तो देयर इज। अच्छा, तो क्या इसमें वो वाला पॉइंट भी कवर होता है जो लोग बोलते हैं कि दांत के ऊपर दांत आ गया, तो वो भी अलाइनमेंट का इशू है? यस, वो भी अलाइनमेंट का इशू है। उन सबको दे शुड बी इन द राइट प्लेस। तो अब ये तो पता चल गया कि अलाइनमेंट कैसे पता चलेगी। एंड प्लस यू फील बेटर यार, लाइक आई सेड, somebody whose teeth are not टेढ़ा मेढ़ा, नॉट आगे पीछे, would love to smile, right? And Right. you feel great, you feel confident. A lot of people you'll notice जिनके दांत नहीं होते वो in ऐसे smile alignment, करते हैं। ऐसे हाँ। या तो पिक्चर में दांत नहीं दिखाएंगे, you know, they'll be smiling like this and it looks odd. या Like I know a few people who'll just smile like this and you're like, what are you doing? करेक्ट, You know? करेक्ट, या So- मेरे को आप एक बात बताओ कि अलाइनमेंट फिगर आउट हो गई, अलाइनमेंट के बाद अब एज अ पेशेंट सपोज मैं आपके पास आया, मैंने बोला, आपने देखा, आपने बोला कि अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है, सो किस हिसाब से आप रेकमेंड करते हो दैट यू शुड गो फॉर ब्रेसेस और यू शुड गो फॉर अलाइनर? इज इट जस्ट अफोर्डेबिलिटी या कोई एक्चुअल और भी रीजन है? बिकॉज आई एम श्योर ब्रेसेस के अंदर भी बहुत सारी Yes, एडवांस टेक्नोलॉजी yes. आ गई है। So it's see, जैसे a lot of it's affordability in some cases, in Okay. others it's
you know, after age of 20, you do not want to wear braces. You do not want, you know, just one gets conscious. You're going for a job and, you know, with braces. So a lot of people feel conscious. Now these aligners are clear. Should I just show them to you? Yeah, why not? So this is an aligner. Oh. So it fits so beautifully on the teeth that most people can't tell that Yeah, you're I couldn't wearing make these. out, yeah. And if they're working as well, then why not? And they're also given to a lot of international patients or people who can't keep coming back. Now, when you have braces, you have to visit a dentist in 15 days to 20 days to get them fitted again, to get the tightening done. Okay. So the movement is right. अब ये तो रेडीमेड है. Every 2 to 3 weeks आप इसको निकालेंगे, अपना दूसरा सेट पहन लेंगे. So they come in different sets. So every 2 to 3. मैंने ये भी सुना है कि जब आप अलाइनर्स पहनते हो स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं. नहीं, it is again just for the initial bit with very few people. अब ये इतनी अच्छी तरह से दांत पे फिट होते हैं that you feel they're So a part basically वो of you. adaptability phase है. हाँ, अब हर चीज़ के लिए यूज टू होने के लिए they say ना that 21 day rule. I तो feel इसमें 5 दिन कभी नहीं होता in most cases. मैं एक बात मानता हूँ कि जब भी एक पुरानी टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करती है तो फिर पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ होना बंद हो जाती है. सो हमारे पास ब्रेसेस एक टेक्नोलॉजी है जिससे मेरे को लगता है कि अलाइनर्स एक नई टेक्नोलॉजी है, बट ब्रेसेस आज भी लाइक बहुत सारे लोग हैं. तो कोई पर्पस भी फ़र्क है कि आप किसी को ब्रेसेस रेकमेंड करोगे और किसी को अलाइनर्स? Yes. अच्छा. So in children Okay. who are not responsible, you know, I say please do not get these kids aligners. ये Okay. घुमा देंगे अपने सेट, निकाल के कहीं रखाएंगे, and then we'll have to wait for the new set to come. Now, you know, delayed treatments. With kids who are very responsible, I say अगर आप कर सकते हैं great. So with a lot of children, actually, I actually refuse them from getting aligners also. मैं एक्चुअली बताऊँ, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, आई यूज्ड टू वर्क फॉर एन अलाइनर कंपनी फॉर देयर मार्केटिंग. एंड मैं एक्चुअल रीज़न आज थोड़ा सा ये समझाऊँ, बहुत सारे हमने डिफरेंशिएटर पॉइंट बनाए कि हाँ ये बात सही है. आई थिंक 16 साल की उम्र तक मे बी you can get braces 16 17, but when a person becomes responsible then one should go for aligners. Definitely, आजकल, but it's a fad. A lot of the school girls do not want braces. They say no, please give us aligners because it's become a fad, and you know they also feel conscious, right? The generation is conscious, so it's basically you can't say below 16 don't get them. But the responsibility is the patient's completely. But braces में खाना खाते हुए खाना वाना नहीं अड़ जाता मतलब? अड़ता है. So see, braces are uncomfortable. And aligners, you say you don't eat with them. You take them out while you eat. So you know you have that flexibility of cleaning them, taking them out. अब braces क्या है, कहीं टूट गई, travel कर रहे हो, फिर you keep coming back to the dental office. You know, if you don't have the time. Does it affect the odor of the mouth, aligners? No. Because it's so easy and efficient to clean, right? It doesn't affect it at all. So when you have a aligner ka set, you also clean the aligners? Yes. Okay. So it's very important to clean the aligners, but just twice a day and rinse them the rest of the day. Okay. And इसमें like किसी ने ब्रेसेस यूज़ करे, किसी ने अलाइनर यूज़ करे, like टाइम फ्रेम जो मिलता है किस में कम होता है? Like which is faster? It's pretty similar. They do exactly the same thing, यार. It's just basically कि Different technology. हाँ, अगर तुम 20 hours की commitment पहनने में नहीं कर सकते तो don't take aligners. Okay. बच्चे अगर घुमा देंगे then don't take aligners. Otherwise they do the same thing and similar time taken. Sometimes aligners I feel are faster also in adults. अच्छा. Yes. अब आई थिंक आपने बात की थी कैलकुलस की, फिर उसके बाद आपने बात करी कैविटी की. कैविटी क्यों होती है? Basically again the word is bacteria. अब bacteria हो गया on the top surface of the tooth which is known as enamel. उसके ऊपर bacteria आया. Now धीरे धीरे the bacteria keeps multiplying. Okay. And it starts decaying the top surface. अच्छा. And then as soon as the top surface is decayed, the layers under it are not as hard. So then it just starts, you know, protruding inside and that's how the decay happens. तो रूट कैनाल क्या होता है? फिर कैविटी के ऊपर रूट कैनाल होता है? अगर कैविटी ज़्यादा डीप हो जाए, जैसे ये दांत है, राइट? अगर ऊपर की सरफेस में रहा, so then we are safe.
Hmm. The minute you see this black, this Yeah. is the root of the tooth here, and inside is the pulp where the nerve is. Hmm. So do you see the black? So the minute the bacteria is coming very close to the nerve, Hmm. that's when the pain starts, and then there's no reversal. So we will have to remove the Tooth. remove the pulp and the Acha. nerve from this tooth. A root canal is basically you get inside the root of the tooth and remove the nerve and the pulp chamber. Oh my God. And No, it's not a very difficult. Root canals are not tough. I think it's become more of a myth that, you know, it's so difficult. These days we are using a new technology. It's called rotary endodontics. okay. And 50-60% cases can be done in one sitting also. अच्छा. Yeah, so it's become advanced and, you know, it's... एंड जब आप डेंटल इम्प्लांट्स की बात करते हो वो कब ज़रूरत होती है किसी को? वो होता है if you have a missing tooth or we cannot save your tooth in that, so we have to extract and put a dental implant. Okay. Dental implant is basically a metal screw which is put in the bone. Okay. So do you see this? It's Yeah. so this is a dental implant. So Okay. this would be your bone and you would have a it'll act missing like tooth. A normal tooth. Yes, they act they act like normal teeth and they're very hard. So you know people love implants and implants have a very good क्या बोलते हैं इसको? Life Very in good terms life. Prognosis. हाँ, they so dental implants basically have a very good life Hmm. and they actually help in hardening the bone around it also. अच्छा. So ये weak नहीं करते. तो वो. अब ये वाली बात से मेरे पास एक टॉपिक निकल के आया है जो है कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है डेंचर पे जाते हुए, है ना? तो क्या ये एक नेचुरल प्रोसीजर है या यू कैन एक्चुअली मेंटेन योर टीथ अप टिल 85-90? So you know genetics play a big role, right? ओके. So if you're genetically inclined to have very weak teeth, you know there's only so much you can do. But apart from that, yes, you can save all your teeth for the rest of your life if one follows very basic dental steps. जो हम सीख Visiting ही a रहे हैं. dentist every 6 months, maintaining oral hygiene while you know with brushing and flossing. You just maintain it. बट वो डेंचर क्यों लगाते हैं? वो सारे डेंटल इम्प्लांट्स क्यों नहीं लगा लेते? लगा सकते हैं. लगा Of सकते हैं. course. कॉस्टिंग का फर्क हो जाता है, ये प्रॉब्लम है. कॉस्टिंग का एंड सम पीपल ना बोन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ना ओवर एज, तो कई बार फिर इम्प्लांट नहीं लगा सकते क्योंकि यू नो एज यू ग्रो यू डोंट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो तुम्हारा कैल्शियम कम हो गया तो बोन स्टार्ट्स रिजॉर्बिंग. सो जैसे हम हैं, हम आवर माउथ स्ट्रक्चर विल बी वेरी डिफरेंट आफ्टर द नेक्स्ट 20 years. आपने ऐसे मेरे को इधर से आया, आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी जहाँ पे वो ना दिखाते हैं कि दांतों को उन्होंने एरिएटेड ड्रिंक्स में डाल दिया एंड दांत बिल्कुल गायब हो गल जाते हैं. गए. तो Yes. क्या वो सही बात है? Yes. सो एरिएटेड ड्रिंक्स आर Is a नो big नो. no. Very big no. If you feel like having it, don't let it touch your teeth for a long time. Have it with a straw. अच्छा. But I don't recommend aerated drinks, even health reasons wise. They're just horrible. टीथ प्रॉब्लम्स कैन कॉज नेक एंड शोल्डर पेन. इसमें कोई सच्चाई है? No. नहीं. आई थिंक हम जिस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं इस पे मेरे को लगता है कि चूजिंग व्हाट ट्रीटमेंट टू गो फॉर से पहले चूजिंग द राइट डेंटिस्ट Yes. एक पॉइंट है. तो हाउ टू चूज अ राइट डेंटिस्ट फॉर यू? You know, go to somebody that you can relate to. Go to somebody who has the knowledge, right? You know, by going to just somebody because you know them is not the correct way. You should go with somebody who you can trust and who has the knowledge. And read a little before going, so you also know something and you can question any health practitioner today, right? There's so much information that most people have before walking in also, which is great. बट डॉक्टर से ही डॉक्टर की फील्ड में क्वेश्चन करना ऑफेंसिव नहीं है? Nahi hai. Why? I mean, I've never taken offense to that. And if somebody does, I feel it's very sad because if you already are so pro your field, and if somebody has a question, then you should answer it. Anybody coming to a doctor is not coming to have fun, you know, and they generally have a lot of concerns. It could be a very silly concern,
or something very well read or but great. Why we should, as I think health providers, it's a must, and I think we've all promised while we got our degrees to be as as humble and as Giving that warm, warm, friendly yes, vibe. and to answer every question a patient has. Why not? ओके अच्छा मेरे को आप एक बात बताओ, आपने Empathetic. वो- मेरे वो वर्ड नहीं आ रहा था. Empathetic. empathetic. Yes. हाँ नहीं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन Yes. शू एंड गाइस यू नो हु टू गो टू. तान्या हैज द मोस्ट फ्रेंडली वाइब. आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन से आप जज कर पा रहे होगे. बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने वाइटनिंग में आई थिंक एक मिथ की बात की थी. पीपल थिंक ऑफ इट एज सेंसिटिविटी. तो सेंसिटिविटी होती क्या है? Basically, the tooth is sensitive when you are going towards the nerve, right? Like how I said, the pain will arise when you're going towards the nerve. Every tooth of ours वो has बोलते a ठंडा nerve. पानी पी लिया मेरे हाँ. को तो बहुत ठंडा लगा, तो वो Basically, it could be anything from a cavity to you losing your the top structure of your tooth enamel, which is Okay. eroding over time because of all the acidic drinks, because of all the bad habits over time, or brushing hard. So that's why the teeth become sensitive. अच्छा, तो सेंसिटिविटी कैन बी ट्रीटेड. Yes, definitely. अच्छा, Then तो सेंसिटिविटी yes. अगर है तो वो it कम्प्लीटली can be ट्रीटेबल. treated. Yes. तो लोग ना वो उस प्रॉब्लम के साथ चल के सिर्फ सेंसोडाइन खरीद लेते हैं. नहीं नहीं नहीं. So that's the thing. खरीद लो, फिर उसके बाद what are you doing? You're just delaying the process. It's going to get worse. हाँ मतलब मेरे को आपकी बात सुन के लग रहा है कि लाइक आई एम डूइंग सो लिटिल फॉर माई टीथ, जबकि एक्चुअली मैं बेसिक एडवाइजेस जो मैं आज यहाँ से लेके जाऊँगा, अगर वो पूरी हो जाएं तो आई थिंक better dental hygiene will eventually lead to lesser problems. Yeah, and better health. You just feel, why does one have to, when you know you can avoid a problem, why medically get into it? मेरे को आप एक बात बताओ, हमने टूथ ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और माउथ वॉश की बात की थी. आई थिंक एक उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है टंग क्लीनिंग. Yes. इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट? Very, very important. There's a lot of bacteria on our tongue, so when we're brushing twice Like a once day. in a week? No, No. twice a day, clean your tongue. अच्छा, Basic simple thing, use the same toothbrush. कोई इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, but clean your tongue. तो वो आज के वो टंग क्लीनर्स और मेटल ये सब कुछ No, करने. they are great. Okay. But अगर नहीं करना इतना कुछ, tongue cleaners are great. Just use your toothbrush. But do it. The point is ये नहीं कि इतनी चीज़ें ऑर्डर की, किया कुछ नहीं. मतलब मैं अब थोड़ा सा अपने दांतों को लेके एक्साइटेड हो गया हूँ कि इतनी सारी चीजें ट्राई करने के लिए मेरे पास हैं. आई हैव गॉट अ शॉपिंग लिस्ट नाउ. अच्छा, सो No, that's what. I do not want everybody to have a shopping list. Do the basic minimum with a soft bristle मैम हम तो मेरे को लग रहा है toothbrush बेसिक and भी नहीं floss. कर रहे ना, तो मेरे को लग रहा है कि अब ये सब चीजें. हाँ, floss खरीदो, soft हाँ. bristle toothbrush खरीदो, you are sorted. एंड अ गुड टूथपेस्ट. Yes. I think it's very necessary. अच्छा, the kind of like we're in India, यहाँ पे for the people who want to become a dentist, what is like the cost like and what is the income like? So it is a rewarding field also, but I feel जो self reward है वो, and it's very necessary to excel in one thing. Do Okay. more study than a BDS. Like I specialize in smile designing. So yes, it is rewarding, and the cost is variable depending on which college you get in. अच्छा, but there's like a minimum cost कि इतने लाख में हो जाता है. अब ये मुझे इतना याद नहीं है, but आपने जिस समय करा था, आपने यहाँ से ये पढ़ाई करी और आपने बाहर से. हाँ, बाहर से. So those courses are very expensive outside India. Okay, In India, it's not so expensive. so it's easy to become a dentist. Yeah, I think very easy to. It's not easy to become a dentist. No, it is a lot of hard work. It's a lot of commitment and dedication to your profession. It is not easy. The first 2 years are very similar to a medical practitioner. अच्छा, We do the but entire body's anatomy. We've done the entire physiology of a body. We know all the drugs. So we've done our pharmacology very well. So is it good money? Money. yes, it could be. It could be. आज तान्या की इनकम गाइस रिवील हो गई है. 20 लाख रुपीस मंथ.
पर मंथ। अच्छा, मेरे को आप एक बात बताओ, हमने अलाइनर्स की बहुत सारी बात करी, हमने डेंटल इम्प्लांट्स की भी बात की, बट जनरली हमने ब्रेसेस वर्सेस अलाइनर्स में सिमिलर टाइम फ्रेम की बात करी, बट केस टू केस डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। यस, तो सबके मैक्सिमम कितना लग सकता है, लाइक मतलब अगर आज कोई अलाइनर्स पहनने शुरू करता है इन द वर्स्ट केस सिनारियो, तो कितना टाइम लगता है 3 years maximum. Maximum. But most cases by 2.5 years are done. डन? Yeah. तो उसके साथ उनके रेगुलर विजिट्स टू द See, aligners में ना इतनी विजिट्स की जरूरत नहीं है। नेसेसिटी नहीं है. So a lot of my international patients वो अपने पूरे सेट्स लेके चले जाते हैं. So they are done. यहीं से? Yes. अच्छा, They'll see me after a year. They'll see me after 6 months. We do a lot of video calls with them, and that's how it works. मेरे को इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पूछनी है, बिकॉज आई थिंक ये मेजॉरिटी लोगों का कंसर्न रहता है कि ब्रेसेस, जैसे अलाइनर्स मेरे को इतना पता है कि मल्टीपल कंपनीज आ गई हैं, तो क्या ब्रेसेस की भी मल्टीपल वेरिएंट्स कंपनीज हैं? No, yes, there are a lot of people who make brackets, but I think patience-wise, one shouldn't worry. अच्छा, so much. तो क्या कॉस्टिंग रहती है जनरली ऑन एन एवरेज केस? ब्रेसेस की क्या कॉस्ट रहती है वर्सेस अलाइनर्स की ऑन एन एवरेज On an केस? average, see, aligners start with about 1.5 Okay. per patient, and Is a total treatment yeah. 1.5 Depends. when you are done with alignment It of depends. It's starting at 1.5. Okay. If you need more, yes. Yeah, I'm talking about an average Yeah, case. average case. And where braces are concerned, so there are 2-3 types, right? एक आजकल lingual braces चले हैं जो पीछे लगते हैं, जी, but they're uncomfortable to the tongue, and they're ceramic braces. So ceramic braces are about 80,000-90,000. okay. And a normal brace, you know, depending on the clinic, this thing 60,000 तो है for a normal braces to plus, depending on each case. सिमिलर टाइम फ्रेम लग ही जाता है, Yeah. बट उसमें आपको डेंट मतलब आप उसमें लेके नहीं चल सकते आपको, No. So you have to do regular dental visits. तो ये एक Because हेडेक। a liner आप क्या है 3 हफ्ते के बाद आप चेंज कर रहे हैं या 2 हफ्ते के बाद, depending on your requirement. अब braces जो है ना, the dentist has to tweak it कि दांत कितना हिलाना है, क्या करना है. Those are prefabricated, already planned and done by the dentist. अच्छा, मेरे पास एक आखिरी टॉपिक है, आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा टच किया था, विच इज़ विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन। आई थिंक सो मैनी पीपल गो थ्रू दिस, बट द टॉक हैज़ बीन वेरी लो अबाउट दिस प्रॉब्लम। एक तो थोड़ा सा आप इसके बारे में मेरे को ये बताओ कि कैन इट बी आइडेंटिफाइड पहले। सेकेंड, मेरे को इसमें जानना है कि डज योर डेंटिस्ट परफॉर्म दैट एक्सट्रैक्शन, और इसके लिए भी कोई ओरल सर्जन या इज देयर समथिंग व्हिच स्पेशलाइजेस इन दिस? So basically, a very complicated case of third molar extraction is done by an oral surgeon. तो ये सेपरेट फील्ड है। हाँ, सो ओरल सर्जन भी डेंटिस्ट ही है? वो नहीं। डेंटिस्ट हैं जिनने आगे पढ़ा है टू डू द MDS इन ओरल सर्जरी. So ओके, they do these complicated, अगर बोन में काफ़ी embedded है, they do these surgeries. And why surgery is because most cases में जो ये थर्ड मोलर होता है ना, या तो slanted आ रहा होता है या तो horizontal, या तो क्या है कि बोन में embedded है काफ़ी. So फिर हल्का सा we have to remove the bone and then take it out. अच्छा, तो जब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने बोला विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन, ये किस एज में पता चल सकता है? एक तो आपने बताया कि रेगुलर चेकअप करोगे तो आपके डेंटिस्ट को पता होगा ही, बट मोस्ट केसेस में सोसाइटी तो देखो सुधरने वाली है नहीं, मतलब हम लोग तो अवेयरनेस फैला रहे हैं, बट मोस्ट केसेस में लाइक 20 पे 25 पे कभी Yes, चेकअप by कराना 18 चाहिए कि to मेरे सारे दांत आ गए हैं। 21, just get a checkup done, and there's this OPG, which is a X-ray of the entire mouth. जी, What you got done, जी. and we could just see on that the placement of the tooth. If it's, you know, in a lot of cases, Ritvik, वो दांत उधर का उधर ही रहता है, and we're good to go for life. The bone के अंदर है, किसी को पता ही नहीं है, great. फॉर लाइफ। Yeah. But in some cases, like yours, now the tooth is touching the tooth in front of it, पेनिंग। and वो पेन इसलिए हो रहा है, उसको टच कर रहा है, and it's got infected. तो तब आपको पेन फील हुई, वो इतने सालों से आपके मुंह में है, there was nothing.
So diagnosis is when the dentist sees that this could be अन्य उसका साइज भी बढ़ता जाता है, मतलब प्रॉब्लम बढ़ती जाती है. प्रॉब्लम इसी क्योंकि वो हिलता है. It all wants to get erupted. Okay. Anything in the mouth, like the teeth, they want to get erupted. So it keeps pushing to get erupted. जब आपके मुंह में जगह ही नहीं है आने की, then it stays there, and sometimes it gets infected if it's half exposed. Sometimes it infects the tooth in front of it. Like in this case, it's so close to the tooth in front of it. You see this? जी. So now this is actually going to start troubling this tooth also. So just a nice X-ray at the right time and the right diagnosis, the doctor will be able to tell you. I think सब friends and family and everyone who's watching उसको बताना चाहता हूँ. I'm putting a X-ray sheet for my own OPG जो मैंने कराया था, and this goes to prove what Tanya has been saying the entire podcast is not just कि एक saying है that you should visit your dentist, but अगर मैं timely dentist के गया होता तो शायद ये चीज़ पहले डिटेक्ट हो गई होती और मुझे आज इतना पेन नहीं फेस करना पड़ता, 4 विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन नहीं कराना पड़ता. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि 1.5 महीने बाद तो मुझे समझ आया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, बिकॉज आई वॉज टेकिंग एंटीबायोटिक्स फॉर माई सोर थ्रोट. बिकॉज विजडम टूथ का जब ये प्रॉब्लम होता है तो जनरली इट अफेक्ट्स योर थ्रोट ऑल्सो. तो इतना इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली में अपने डेंटिस्ट के जाना और सिर्फ ये चेक करा के आना कि मेरे दांत ठीक है. That validation from your dentist. If your friends and family is saying कोई जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाना, तो भाई मेरी तरह ही आप भी विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन करा रहे होगे, and the cost is upward of 50,000 rupees. So thank you. I think ये It's not 50,000. maybe more, lesser, like for one tooth. I'm talking about 4. Yes. If I talk about 4 tooth, I think 40-50,000 and upwards it can go depending And upon the pain complication. And the effort. Yes. वही एंड अगर वो सही टाइम पे हो गया होता तो आई डोंट थिंक आई शुड हैव, मतलब अब मेरे को लग रहा है कि आई शुड हैव विजिटेड माय डेंटिस्ट वंस फ्रॉम एटलीस्ट 20 इयर्स. 18 साल के जब आप अडल्ट हो गए उसके बाद तो आप अपनी इस चीज का ख्याल रख सकते हो. नहीं ऋत्विक, 1 year. From 1 year. Yes. ये मैं सीख के जा रहा हूँ. एंड श्योरली आज मेरे को एजुकेशन ये तब मिली है when my son is 7, and the first thing I'm going to do is to take him to the dentist and check all of these points. So thank you Tanya, it was lovely having you. I think आपको मतलब जिस तरीके से उम्मीद थी पॉडकास्ट की उससे बेटर ही गया होगा. No, definitely. It was great and I just felt we were just chatting. Yeah, so it was lovely. मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे डेंटिस्ट्री की फील्ड में, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री की फील्ड में नई एडवांसमेंट आती रहती है. आई थिंक एवरी 6 months वी ऑल्सो नीड दिस सेशन फॉर आवर व्यूअर्स. Done. Anytime for you. All right, perfect. Thank you. Thank you.